क्या जो देख कर आ रही हैं ट्रेलर देखने के बाद जो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई क्या? I would say no. To me, the film didn't work that much, and the reason being, it's a huge star cast. You know, you have Kartik Aaryan, Kiara Advani, you have Tabu. How can you go wrong? It is this time you realize the importance of right writing, and I think somewhere the film kind of failed. It's really very long. It feels long. For Kartika, it's good, but you know, the industry is looking for something like RRR or a Gangubai. वो नहीं है. ठीक है, पॉपकॉर्न मूवी है, चल जाएगी थोड़ी बहुत, बट आई वुडंट से इट काइंड ऑफ इट ड्रैग्स या आई वुडंट से इट वर्क फॉर मी. परफॉर्मेंस वाइज कार्तिक आर्यन बहुत बढ़िया हैं. आपको आंख बंद करके अगर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा अक्षय ही बोल रहे हैं, which is very surreal, very strange. So you feel that, you know, it's Akshay talking. He's really tried to take it very well. Kiara is also very good. Tabu is excellently utilized. But अगर मैं क्रिटिक के लिहाज से देखूं तो फिल्म कहीं ना कहीं बेहतर कर सकती थी. वो डरा सकती थी, बहुत ज़्यादा हंसा सकती थी. पंच बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. शायद आ जाएं, कार्तिक के फैन आ जाएंगे, कियारा के फैन आ जाएंगे, बस दैट्स अबाउट इट. इसके बाद हम धाकड़ ही देखने जा रहे हैं. दोबारा आपसे वहाँ मिलेंगे, देखते हैं. यार आई विल ओनली गिव इट अबाउट 3, नॉट इवन 3, 2.5. See, I can recommend this film for someone who just, you know, for younger age, who just want to come for the kick of watching Kiara Advani, Kartik Aaryan on stage, but nothing more than that. You know, you would want something more. Yeah, thank you. बहुत अच्छी लगी एंड इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज जिसमें वी हैड mystery was there, entertainment was there, horror was there, comedy was there. It's a complete package. It's just awesome. I think Kartik Aaryan, because I never expected that he can, you know, pull a film together like इतनी देर तक खुद पूरा screen space लेके. It was a wonderful job, amazing Kartik. We wish you all the best. It was amazing. बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड सबसे बड़ी बात है कि एवरी मोमेंट वाज वेरी कैप्चरिंग. आपको एक भी मोमेंट बोरिंग नहीं लगेगी. कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अभी तो कुछ आगे होना चाहिए. इट्स ऑलवेज एंटरटेनिंग. इट्स जस्ट ऑसम. जस्ट वन वर्ड, फैब. वी जस्ट लव यू. वी जस्ट लव द डायरेक्टर एंड उन्होंने फिर से प्रूव किया इज अ डायरेक्टर्स मीडिया. सो डायरेक्टर इज द अल्टीमेट हीरो ऑफ द फिल्म. सो इट्स लाइक 10. ऑफ कोर्स. अरे बिल्कुल आइए. आई थिंक फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे ही आना चाहिए. इट्स लाइक दैट एंड इट्स जस्ट ऑसम. मैं तो आई थिंक फिर से एक बार शायद देखूँ. आई एम फीलिंग लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स थैंक यू. Yeah, actually, the expectations were quite like they were there, but I think the hype was so much. So somehow it has, walked on it. It's good. अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन ये जो भूल गए 1 और 2 क्या कहना चाहिए? I think Akshay Kumar was a product of its time, and Karthik is, he's also good in it. So I think no comparison. Both have their own audience. डरे कितना और हंसे कितना? I think more humor than the spooky parts, but I think it has a balance of both. स्टोरी वाइज डायरेक्शन वाइज कैसे था? Oh, direction was really good. I mean, the director has a good knack of telling the story. He's a good storyteller. धाकड़ के सामने तो Dhakar to has a separate audience only, no? It is more of a thriller and action. This is more horror comedy, so I think audience can have a movie marathon if they want. और मौजुलिका ने कितना डरा? Oh, I mean, she definitely had her moments. I mean, we all were sometimes sitting on the edge of a seat. Sometimes she was nice. So I guess overall, definitely the first one was scary, but this is also not that bad. 3.54. Yeah, definitely. मुझे खुशी हो रही है कि कार्तिक आर्यन की ये पिक्चर हिट होने वाली है. हाँ, क्योंकि ना मसाला फिल्म है. आज के टाइम में लोगों को ना थोड़ा कॉमेडी सब मतलब मज़ा आता है देखने. ये जर्नलिस्ट लोग थे तो वो भी हंस रहे थे. थोड़ा सा हॉरर मतलब हॉरर मिस हो रहा था. उतना हॉरर नहीं था जितना फर्स्ट में था. नहीं मतलब उन्होंने ओवर एंड ऑल क्या किया ना, पिक्चर को एक थोड़ा कॉमेडी टच दे दिया है. मतलब पूरी तरह से बोलते हैं ना डरावनी नहीं है. तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट है कि बच्चे लोग भी जाके देख सकते हैं. उनको एंजॉय होगा. भूत के साथ मस्ती चल रही है तो पिक्चर है ना ओवर एंड ऑल टाइम पास है. और पब्लिक को आज के टाइम में टाइम पास ही चाहिए. मुझे ये बताइए
आ, देखो ये तो वही बात हो गई कि अमिताभ बच्चन अच्छा है कि शाहरुख खान दोनों की अपनी अलग जगह है। हाँ। दोनों की अपनी अलग जगह है। और कार्तिक आर्यन बोलते हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी अक्षय कुमार तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी वो जूनियर है और अक्षय कुमार तो सीनियर है, काफ़ी 30 साल का उनका अनुभव है। तो एक्टिंग वाइज बोलेंगे तो अक्षय कुमार बेटर ही है। अच्छा, स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज कैसे लगे? पिक्चर थोड़ी लंबी है, मतलब थोड़ी कम हो सकती थी, और गाने भी बहुत नहीं है, गाने मिसिंग है थोड़े, और एक दो गाने होने चाहिए थे ऐसा एंटरटेनमेंट के हिसाब से। और मुझे अच्छा ये लगा कि कार्तिक आर्यन ने जो डांस किया है वो बहुत अच्छा किया है ये मंजुलिका वाले सॉन्ग पे। तो मतलब ओवरऑल आप मुझे अच्छी लगी पिक्चर। 3.5। अरे ऑफकोर्स मैं तो बोलती हूँ आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एंटरटेनमेंट फिल्म आई है तो सबको मज़ा आएगा। फिल्म अच्छी है, कॉमेडी है और मसाला है, यू कैन एंजॉय। सरप्राइज कर दिया ऑफ कोर्स। तब्बू की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन कार्तिक आर्यन वाज वेरी गुड। ज़्यादा हंसने, अब ज़्यादा कॉमेडी थी या फिर दोनों कॉमेडी ज़्यादा थी इसमें, एंटरटेनिंग है तो कॉमेडी है तो अब एंजॉय करते हो। लाइक स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज? स्टोरी वाज इतना तो खास कुछ है नहीं स्टोरी इसमें, लेकिन हाँ आपकी कॉमेडी ज़्यादा डाला हुआ है तो एंटरटेनिंग लग रही है। 3.5 आई कैन गिव। या ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय, वीकेंड भी गुड वॉच है। थैंक यू। भूल भुलैया 2 देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म? एक्सपेक्टेशन जो थी? देखिए फिल्म वाज आई मीन सो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, बट टब्बू वाज द वन टू स्टील द केक। एंड अभी फ़िलहाल इंस्टाग्राम के ज़माने में जिस तरह से देखा गया यहाँ पर आजू बाजू में, इट्स नॉट जस्ट द मीडिया, ऑल डाउन मार्केट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आर हियर टू प्रमोट द फिल्म. So that's the funny part of it. I don't know what is the insecurity going on, but you know that's how it is. That's really ridiculous. फिल्म की बात करते हैं हम, और स्टोरी कैसी लगी? डायरेक्शन वाइज ही फिल्म कैसी? It was a pastiche of many films. It was a mixture of, I mean, a number of films that we've seen, but Tabu still make. I was kind of very happy with the filmmaker, Mr. Anis Bazmi, that he actually gave Tabu a very meaty role. So I like to say that, you know, with the fact that she was there and she did most of the things in the film, that was really good. मुझे कभी कभार कार्तिक चंटू ऐसे लग रहे थे, कार्तिक आर्यन. हॉरर ज़्यादा था या कॉमेडी? कॉमेडी ज़्यादा थी और हॉरर was there in the last part. If Tabu wasn't there, I don't think the film would actually be, you know, worth my watch even. आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 3. रेकमेंड करना चाहेंगे? Once it hits Netflix or Z5 or any other OTT platform, you can go and watch it. It's no big deal. भूल भुलैया 2 देखकर आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई है, फिल्म कितनी खरी हुई? I would say if not 100%, definitely 80-85%. और जैसा कि जो एक पॉजिटिव रिएक्शन था ट्रेलर के लिए, तो उस हिसाब से डेफिनेटली द फिल्म इट स्टेज ट्रू टू इट्स एक्सपेक्टेशन. और स्टोरी है, मैं इतना कहूँगा बस, जैसा कि जो कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, इन्होंने बार बार प्रमोशंस के दौरान कहा कि ये पुरानी जो 2007 की जो फिल्म आई थी भूल भुलैया, उससे थोड़े बहुत चीज़ें ये लेती है, बट इट हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. तो फिल्म देखने के बाद आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये हालांकि मंजुलिका है, लेकिन ये वो मंजुलिका नहीं है जो आपने पहली वाली फिल्म में देखी थी. फिल्म में खैर ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, उनके बारे में तो जाहिर है मैं बता नहीं सकता हूँ. और बस मैं ये कहूँगा कि एक हॉरर कॉमेडी का हमेशा एक बैलेंस की बात होती है कि कितना हॉरर और कितनी कॉमेडी हो. तो हमें ऐसा लगा शायद इसमें कॉमेडी थोड़ी ज़्यादा है और हॉरर फैक्टर जाहिर है कम किया गया है, बिकॉज ज़्यादा अगर डराएंगे लोग तो फैमिली वाले ऑडियंसेस आएगी नहीं. और मुझे जेन्युइनली लगता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक फ़िल्म आई है जो पूरी फैमिली को शायद एंटरटेन करेगी. अब चाहे इसका जो कॉमेडी है इट्स एक फैमिली कॉमेडी है, कोई ऐसे बेतुके डायलॉग नहीं है. एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज मोस्ट एक्टर्स हैव डन वेल, स्पेशली तब्बू एंड कार्तिक आर्यन. कियारा भी उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है. और जो मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा वो है राइटर, आई थिंक आकाश कौशिक, और डायलॉग राइटर्स फरहाद सामजी, और एंड द डायरेक्टर अनीस बाज़मी. तो ऑल सेड एंड डन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फैमिली एंटरटेनर. मैं लोगों से अपील करूँगा आप इसे जाके देखिए. और रही बात रेटिंग की, तो मैं इसे 5 में से 3 या 3.5 स्टार देता हूँ.
My pleasure.